Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to Textbook Regulatory Bodies. In this particular video, we are going to talk about SEBI Grade A examination 2024. So if you are preparing for SEBI Grade A examination, so there are some things which you need to know about this particular exam. So recently, past week, SEBI they come up with the detailed notifications. So we are going to cover each and every part of this particular notification. So along with that, we will also talk about basic strategy toward this particular examination, resources, as well as the exam level. Okay, so we will talk about the basic notification, exam pattern, eligibility criteria, salaries, आपका syllabus, cutoff, and other areas which are generally we are going to talk about in this particular session. This year, SEBI they generally come up with a slight twist in their notification itself, and they mandate through the experience one, right? So if you are preparing for SEBI grade A examination, so they have added one section. 2 year minimum experience is must for this particular one. Okay? So what are the areas where we need 2 year experience, or what are the areas where we do not need that particular experience with some additional qualification and all, that we will also discuss, right? So SEBI grade A 2024 vacancies are already out. Every year SEBI come up with vacancies, number of vacancies for their grade A and grade B post. Okay. So grade A is basically assistant manager level job, and grade B is manager level job, right? So grade A notification is already out. These are the dates. हर साल आपका ये वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं सेवी के द्वारा, ठीक है, सिडबी के द्वारा. दिस इज नॉट ओनली अबाउट 24. जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, so this can be one exam which you can in your that entire diversification portfolio, this can be one another examination. ठीक है. सो सोर्सेज क्या रहेंगे स्टडी करने के लिए अदर्स, उन सब के ऊपर काफी डिटेल में आपका यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है. सो दोज हु आर प्लानिंग फॉर 24 examination, so we have this was initiated from 8th of November 24, and closing for online registration will be till 2nd of December 2024. That means candidate will be able to apply for SEBI grade A examination till 2nd of December 2024 if you met with the requirements of this particular examination. Okay? So apart from this cutoff date determining eligibility criteria with age regard is 8th of November 2024 itself. Okay? That means there is a eligibility criteria in age one. ठीक है. तो 23 to 30 years का जो age criteria है, that will be counted on the basis of this particular date. ठीक है. And cutoff for determining eligibility criteria with regard to educational qualification or post qualification experiences, that will be on the basis of 2nd of December 2024. Okay? Let's say if there is a person who is working with some banks, and if you complete 2 years with that particular banks by 2nd of December 2024 itself, so you will be eligible for this particular post. Okay? Phase 1 tentative dates are 22nd December, and phase 2 tentative date of examination is 19th of January 2025. Tentative schedule for interview in the month of February 2025. ठीक है. तो ये आपके important dates हैं. ठीक है. And even like if you'll go for 25 itself, so you'll see the entire things from the CV, and with this video you'll get to know these are the requirements, so you can work on those particular areas. Okay? So these are the major dates regarding SEBI grade A 2024 examination. So before coming to the other eligibility areas and all, now first we'll talk about the job profile. Okay. So basically this post is for experienced person. So if you are already working with some bank or some other financial institutions or regulatory bodies, so if you want to part of this particular organization, what will be your KRA, right? So कौन से ऐसे areas हैं जहां पे आपको deal करना होगा. Being a assistant manager, what will be your role and responsibilities with SIDBI? So that is generally given in this particular one. Okay?
So grade A, if you talk about the grade A general manager, जनरल स्ट्रीम, ठीक है, ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर जनरल स्ट्रीम, ठीक है. So the officers are expected to contribute proactively in following broad areas. First one is overall business development, appraisal of MSME credit proposals, sanctions, disbursement, customer management, credit monitoring and follow-ups, ठीक है. Apart from this, timely completion of review, renewal of proposal in accounts, business growth in term of outstanding portfolio of direct credit of the branch, increase in new customer onboarded in the given year, representing SIDBI on various fora, member of various credit committees, management of SMAs and NPA, special mention accounts and non-performing accounts, including follow-up for timely recovery of demanded dues, coordinate and facilitate legal related issues in the BO. So timely submission of MIS and other reports monthly, quarterly, yearly to head office verticals. Any other work as assigned by the bank from time to time. Okay. So basically, let's say if you are working as a PO or as a clerk in any bank, if you want to apply for this particular one, so in a bank, basically we generally deal in multiple activities in all things. So here it is something around MSME because SIDBI is a development bank for MSME itself. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो role and responsibilities है that will be directly with this kind of thing. So it is kind of B2C, B2B business. ठीक है, so business to business, like SIDBI with some other institutions, those who are dealing with those who are generally categorized as MSME. So you have to deal in these particular activities. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका वर्किंग प्रोफाइल है. एज यू कैन सी, इफ यू involved in these kind of activities, so you'll have more exposures, ठीक है, तो उन कंपनीज का एनालिसिस और उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो, ठीक है. अब आपका जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ जो बेनिफिट आपके हैं वो भी उसी तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है. सो वी हैव अ वेरी गुड पे पैकेज. It will go around 22 to 24 lakhs per annum if you talk about the grade A examination or grade A officer, ठीक है. तो grade A के लिए ये आपका जाएगा around 22 to 24 lakhs per annum. That means almost 2 lakh rupees per month including all the benefits and all, ठीक है. तो और इसके अलावा आपका इंटरनल जो प्रमोशंस होते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो सोशल बेनिफिट्स आके हैं दे आर अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. So, name of the post, if you talk about the grade A, so in case of grade A, so said to be grade A, so the general stream 44,500, this is the basic pay and it will go around 1 lakh, ठीक है. और अगर आप इसमें जो फैसिलिटीज या जो बेनिफिट्स हैं वो ऐड कर देते हैं, सो इट विल बी अराउंड डबल, सो इट विल बी अराउंड 2 lakh rupees per month, ठीक है. So overall we have 50 vacancies, ठीक है, in this particular one we have 50 vacancies for year 2024 itself. और हर साल आपका लगभग इसी के आसपास वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. एंड दिस इज द फर्दर बाइफर्केशन, ठीक है. SC6 आपका, ST4, OBC 14, EWS 3 एंड 23 फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स, ठीक है. तो इस तरीके से टोटल आपका 50 वैकेंसीज और हर एक सी अगर आप डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, सो यू जस्ट नीड वन वैकेंसी. एंड देखो जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस डाला तो उन्होंने आधा एलिमिनेशन तो वैसे ही कर दिया, ठीक है. सो अब यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद सिस्टम एंड दे हैव अ काइंड ऑफ लाइक इफ यू पुट योर एफर्ट्स टुवर्ड फ्यू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन से उनके ऊपर भी बात करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका कर सकते हैं, ठीक है. And I'll be guiding you by till your selection, ठीक है. तो very soon I'll start classes for that MSME वाला criteria and all, ठीक है. So वो सारे areas आपका और JIB CIB अगर आप certified हैं कैसे वो help करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा. मैंने एक पुराना वीडियो भी किया है और मैं खुद JIB CIB में इन्वॉल्व रहता हूँ, ठीक है. मैं खुद आपका DVF सर्टिफाइड हूँ, तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीजें आपका डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है. सो एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. यहीं पे आपको सारे सेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. सो अगर हम लोग बात करें सर्विस कंडीशन एंड करियर प्रोस्पेक्ट, सो प्रेजेंटली द ग्रॉस एनरोलमेंट इंक्लूडेड DA, आपका ग्रेड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस,
further candidates selected for the post will be governed by the definition of contribution, new pension schemes और सच अदर बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट उसमें रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका ग्रेजुटी लीव फेयर कंसेशन, इसके अलावा आपका स्पाउस एंड अदर्स, ठीक है, रिम्बर्समेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस, आपका हाउसिंग अलाउंस, टेलीफोन, इंटरनेट, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो आपका बेसिक पे जो था वो तो अलग है, बट उसके बाद एक इंसान को रहने के लिए जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसके पूरे फैमिली का टेक केयर किया जाता है इन पर्टिकुलर पोस्ट में। आप देखो लास्ट लाइन पढ़ो, अमाउंट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, based on the place of posting, CTC of officers in grade A range from 19 lakh to 21 lakh, ठीक है। तो आपका जो ग्रेड ए आपका ऑफिसर होंगे उनका जो सीटीसी आपका, दिस इज मेंशन इन दी नोटिफिकेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया है 19 टू 21 लाख का आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो ग्रेड बी के लिए जाते हैं वो आपका 23.5 टू 26 लाख तक का सैलरी पैकेज आपका जो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हम ग्रेड ए की बात करें, सो दिस इज द वन, ओके। अब इतने अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी कहीं ना कहीं उसी लेवल की आपकी होंगी, ठीक है। सो नाउ विल कम टू द फर्स्ट थिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, विल टॉक अबाउट द एज लिमिट, दैट इज काइंड ऑफ थिंग्स विच रिमेन कांस्टेंट इन। अब ऐसा नहीं कि इस साल ये है तो अगले साल कुछ होगा, हर साल आपको इसी रेंज में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट आपका मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो मिनिमम और मैक्सिमम का कैलकुलेशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन 8th of November 2024, the date on which they start collecting the application for this one, ठीक है। तो 8 नवंबर 2000 मतलब इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर 8/11/1994, नॉट लेटर 9th of 11/2003 आपका, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से आपका जो यहाँ पे एज लिमिट होगा, ठीक है। सो इफ यू बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर वन, एक एरिया आपने पास कर लिया, ठीक है। अदर आपका अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। सो आपका जैसे इफ यू बिलोंग्स टू SC एंड ST, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर का सीधा आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपका 30 ईयर है तो 35 ईयर हो जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास OBC आपका 3 ईयर, इसके अलावा PWBD अनरिजर्व और EWS पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर आपका। PWBD आपका कैंडिडेट क्यूमुलेटिव OBC रिलैक्सेशन 13 ईयर्स आपका दोनों को मिला करके, एंड PWST क्यूमुलेटिव आपका 15 ईयर का रिलैक्सेशन जो यहाँ पे दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आपका जो है दे विल गेट रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, सो आपका उनको जो रिलैक्सेशन है दैट इज फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये एक और आपका इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन रहेगा, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस। नेक्स्ट वन आपका, अब आते हैं हम लोग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो चेंज आपका सिडबी यहाँ पे लेके आए इस बार आपका, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं फ्रेशर थे उनको आपका थोड़ा सेटबैक मिला, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, बट जब कैंडिडेट्स ने थोड़ा सा या लोगों ने जब अपील की सिडबी से, सो दे ड्रॉ बैक दैट पर्टिकुलर थिंग्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, बिकॉज देयर वाज लीस्ट एप्लीकेशन, बहुत ही कम एप्लीकेशन सिडबी के पास गए थे, तो उन्होंने आपका ड्रॉबैक किया। बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है। तो अभी आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ग्रेड ए की अगर हम लोग बात करें जनरल स्ट्रीम, ठीक है, सो मैक्सिमम एज 30 इयर्स विदाउट रिलैक्सेशन, जैसे हमने बात किया, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, दो चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। पहला, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स और 50% आपका 10% रिलैक्सेशन फॉर ST ST एंड PWD, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा या तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा या तो CS होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीट सर्टिफाइड मैनेजमेंट CMA होना चाहिए, या फिर आपका चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA आपके हो, ठीक है, और या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, और या फिर आपका उन्होंने MBA किया हो आपका किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब साथ ही साथ एक और क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है,
दैट इज अबाउट दी योर एक्सपीरियंस, ठीक है। सो एक्सपीरियंस में ओनली कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर कैंडिडेट हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स बिजनेस दिस 60% इन ऑल, और कंपनी सीएस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसेंशियल इज इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मतलब आप जैसे आपका सीए है या एमबीए है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। इफ यू आर अ सीए ग्रेजुएट और एमबीए ग्रेजुएट, सो एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किसके लिए दिया, जो ये दो कैटेगरी के लोग आपके हैं कैंडिडेट जिन्होंने इसमें आपका डिग्री किया है, ठीक है, उनके लिए आपका एसेंशियल क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस in credit dispensation in area of MSME, corporate and lending to trading and small commercial loans, जैसे आपका vehicle loans या others and all, ठीक है। So this, या फिर वो आपका जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड, आपका एग्जिम, इनके साथ ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो एसेंशियल्स में आपका ये रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका एग्जिम बैंक्स नबार्ड ये सब, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपका, ठीक है, वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो सब चलेंगे। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। इसके अलावा इनमें जॉइंट भी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है दैट विल आल्सो वर्क, जैसे यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कोर फंक्शनिंग, जैसे एंटिटीज डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्चेंट बैंकिंग एंड अदर्स सेबी के अंदर, ठीक है। और आपका आप डायरेक्टली सेबी के साथ आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में काम कर रहे हैं, एआरसी आरबीआई के अंदर आपका जो रजिस्टर्ड एआरसी है उनमें काम कर रहे हैं, सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक डीलिंग इन एमएसएमई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन अदर्स जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन में नोट ग्रेजुएशन लेवल कैंडिडेट हैविंग टेकन सच कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज इन ऑल, तो वो गवर्नमेंट अप्रूवल में होना चाहिए, हैविंग 3 ईयर ऑफ ड्यूरेशन दिस आपका ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका 2 ईयर ऑफ आपका कंप्लीशन आ जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट एंड ऑल, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर आपका चला तो वो भी आपका चलेगा, बट जो अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें तो ये जो आपके ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं दे नीड 2 ईयर एडिशनल एक्सपीरियंस। अगर आप आपका सीए है और एमबीए है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। और आप इस एरिया से ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आपको एडिशनल 2 ईयर का रिक्वायरमेंट होगा, वो कोई बैंक हो सकता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, और आपका कोई डीएफआई हो सकता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या फिर आपका कोई एआरसी जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंदर, या अदर्स, ये जो लिस्ट आपका दिया है। तो ये एक मतलब जहां से बहुत सारे कैंडिडेट आपके छट जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो एरियाज हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका कंसल्टेंसी फर्म्स दिस आपका 10 इयर्स एंड अदर्स, ये पूरा रहेगा, ठीक है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीरियल नंबर 3 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 4 का मतलब है ये, ठीक है, 3 एंड 4 का मतलब है ये, ठीक है। इनके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आपका है 2 इयर्स वाला वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एज यहाँ पे मिलता है सीए कैंडिडेट को, या फिर आप किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जहां से आपने एमबीए किया है तो उसके लिए भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ना अगले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर, अब अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, so the entire exam process or that phases are divided among 3 part, phase 1, phase 2 and phase 3, ठीक है। so phase 1 आपका where we have 7 subject, आपका 4 subject are eliminating in nature, ठीक है, you just have to pass on that basic criteria and your कट ऑफ विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है। 100 मार्क्स पे 3 सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ बनेगा, फिर फेज 2 आएगा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव, देन फाइनल आपका इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। आपका द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड इंक्लूड 3 स्टेजेस। फेज 1 आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग 1 पेपर कंप्राइजिंग 7 सेक्शंस टोटल 200 मार्क्स। फेज 2 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग 2 पेपर्स ऑफ टोटल 200 मार्क्स एंड फेज 3 आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। Candidate who qualify phase 1 based on minimum cutoff marks decided by SIDBI
वुड बी कॉल फॉर फेज 2, देन आपका फेज 3 के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज 1 एग्जामिनेशन की, ठीक है। सो फेज 1 एग्जाम फॉर ऑल स्ट्रीम, ठीक है, ऑल ग्रेड, ठीक है, आप ग्रेड ए या ग्रेड बी, इसमें एक खास बात यह है कि ग्रेड ए ग्रेड बी का ऐसा सेग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। फेज 2 में जाके वो सेग्रीगेशन होता है, और उस सेग्रीगेशन का जो पैरामीटर है वो भी आपका क्या है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। सो फेज 1 आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें नेम ऑफ द टेस्ट, दीज आर द 7 सब्जेक्ट, ठीक है। आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन आपका दीज 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपके, जस्ट आपका इनको आपको पास करना होगा एक मिनिमम क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। आप जनरल अवेयरनेस with a special reference to banking, financial sector and economic and social issues. MSMEs आपका policy, regulatory and legal framework, finance and management with focus on MSME. इसके अलावा स्टीम स्पेसिफिक टेस्ट आपका होगा, ठीक है। तो ये 3 जो आपके है ना, इनके बेसिस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी फॉर दी फेज 1। मतलब ये जो 100 मार्क्स हैं ये आपका एलिमिनेटिंग होगा, ये जहां पे यू जस्ट हैव टू पास दैट बेसिक टेस्ट एंड ऑल, ठीक है। जो आपके मतलब जो आपका स्कोर होना चाहिए, जो आपका कहीं ना कहीं जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो इनके बेसिस पे, ठीक है। 20, 30 एंड 50 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना स्ट्रीम स्पेसिफिक, अगर आप जर्नलिस्ट के लिए जाते हैं तो इसमें आपका यही सिलेबस आपका काफी यार डिटेल में दिया गया है। आई विल शो यू द सिलेबस आल्सो, राइट। फेज 2 की अगर हम लोग बात करें, चाहो डिटेल आपका जो रहेगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट वाला जो पेपर है 50 मार्क्स का, उसमें क्या होगा, जर्नल आपका, जर्नल ग्रेड और ग्रेड बी दोनों का सेम है। एमएसएमई फाइनेंसिंग, जिसमें ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशियोज, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, एनपीए एंड रिकवरी इंक्लूडिंग आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन अकाउंट कैटेगरीज जो होती हैं आरबीआई की, एनबीएफसी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज फाइनेंसिंग, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। सो दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है, ये आपके लिए टॉपिक है। मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना 50 मार्क्स का, सो ये 50 मार्क्स आपका, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो दिस इज द सिलेबस फॉर 50 मार्क्स। अगर कोई आपका लीगल या आईटी के लिए जाते हैं ग्रेड बी के अंदर, ठीक है, और ग्रेड बी के अंदर ये पोस्ट भी है और ये दोनों भी है, ठीक है। तो उसमें आपका लीगल में जैसे आपका जनरल नॉलेज, आपका लॉस पूरा कंप्लीट लॉ आप कह रहे हैं, और आईटी में आपका पूरा आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। सो क्वालिफाइंग सेक्शन आपका यहाँ पे देखो, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, आपका कंप्यूटर, दीज आर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट फेज 1 के अंदर। मेरिट सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस, देन वी हैव आपका इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, एमएसएमईज आपका, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आपका होगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फेज 2 एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन मेरिट सेक्शन। इसके बेसिस पे आपका क्या होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है फॉर फेज 2। फेज 2 का सेपरेट से आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। अब आते हैं फेज 2 के ऊपर। तो फेज 2 में हमारे पास 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सबके लिए कॉमन है, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। तो जहां पे क्या रहता है, ऐसे प्रेसी एंड आपका करस्पॉन्डिंग बिजनेस लेटर्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेज 2 जिसमें आपका क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ऐसे प्रेसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, ये आपके रहेंगे, ठीक है। सो यू विल गेट आपका 3 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स 75 मिनट में, ठीक है। सो दिस इज द वन, ठीक है। सो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आपका होगा आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड्स आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड भी आपका सही होना चाहिए, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में होता है, एग्जैक्ट आपका सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स। बेसिकली यू हैव टू टाइप इन द कीबोर्ड्स, और वर्ड लिमिट्स के साथ आपको वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फेज 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फेज 2 आपका पेपर 2, सॉरी फेज 2 पेपर 2, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास जो सिलेबस है वो कौन सा है, जो आपका 50 मार्क्स वाला फेज 1 में है, जिसमें आपका देखो एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन एमएसएमई फाइनेंस, ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी रेशियोज, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एनपीए एंड रिकवरी इंक्लूडिंग आईआरएसी नॉर्म्स, एनबीएफसी, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी, अल्टरनेटिव फंड्स, आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शंस,
ARC प्रमोशन एंड ऑल, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज द डिटेल सिलेबस, कीवर्ड्स आपका जो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। अब सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक मतलब आपको एक वो दे दिया है, ठीक है। ये सारे अपने आप में इतने इतने बड़े टॉपिक है ना, इफ यू स्टडी जैसे LC डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट को अगर आप पढ़ते हैं, सो ये अपने आप में एक पूरा एक मतलब 50 पेजेस का एक यूनिट है, ठीक है। दूसरा जैसे अगर आप मर्चेंट बैंकिंग पढ़ते हैं, NBFC पढ़ते हैं, आपका NPA पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनके जो सब टॉपिक हैं वो उन्होंने डिटेल में नहीं दिए हैं, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है ना, क्वालिफिकेशन में क्लियरली आपका पीछे मेंशन किया गया था कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने JIB एंड CIB क्वालिफाई किया है उनको प्रेफरेंस आपका दी जाएगी। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये पूरा कोर्स करिकुलम उठाते हैं ना, दैट इज पार्ट ऑफ योर JIB CIB एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसलिए ये बैंकर्स के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ऑनलाइन जो लोग जिनको पता नहीं है JIB CIB सर्टिफिकेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली इफ यू वर्क विद बैंक्स, तो बैंक में आपका इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, उसके अलावा आपका इंक्रीमेंट्स के लिए, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशन जो IIBF के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, वन इज JIB, अनदर वन इज CIB। जैसे आजकल इनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं, साल में 2 बार ये पेपर होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट जो बैंकर नहीं है उनको नॉन मेंबर बोलते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज अ DBF, ठीक है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सेम कोर्स करिकुलम आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव आपका, अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा कोर्स कंटेंट है, एंड अगेन जैसा RBI ग्रेड बी का होता है पैटर्न, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मिक्स आपका। तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और फॉर 75 मार्क्स। एंड आपका इसके अलावा अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, यू विल गेट 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका, जिसमें से 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के, बट आपको 10 क्वेश्चन नहीं लिखने। आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चन आपको लिखने आंसर्स फॉर 4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन के लिए आपको लिखना होगा, 2 जिसमें से 15 मार्क्स के, 2 आपका है 10 मार्क्स के, ठीक है। So 10 question will be asked of which candidate will be required to attempt 4 question, 2 for 10 and 2 for 15 marks, ठीक है। अगर आप ग्रेड बी का देखेंगे, सेम सिलेबस आपको मिलेगा, बट यहाँ पे 10 की जगह आपका 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 50 क्वेश्चंस का मार्क्स बाइफरकेशन कैसे होगा, कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बाइफरकेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द आपका जो एरिया जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपने मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर बुक्स कौन से हमें प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने JIB CIB ऑलरेडी किया है, ठीक है, एज अ बैंकर, तो आप उन बुक्स से दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो चीजें नहीं की हैं, अगर आप जैसे बैंकर नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, जो भी रिक्वायरमेंट थी, सो यू कैन गो थ्रू दोज पर्टिकुलर बुक्स, ठीक है। वो बुक्स आसानी से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो जहां से आप इनको आपका गो थ्रू कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड एरियाज आपका जिनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, हमने सारी चीजें आपका यहाँ पे कवर अप की, ठीक है। वो आपका जो पोस्ट है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, KRA क्या होगा, वो हमने समझा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज हमारे पास बेनिफिट्स, पे स्केल्स कैसा है, वो सारी चीजें हमने समझी, ठीक है। एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे एक्सपीरियंस, कहाँ पे नॉन एक्सपीरियंस काम करेगा, ठीक है। सो ओनली 2 एरियाज, इफ यू आर अ CA ग्रेजुएट और दूसरा आपका इफ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, तो आपको एक्सपीरियंस की चिंता नहीं करनी है। बट अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, एंड इफ यू आर वर्किंग विद सम इंस्टीट्यूशन एंड यू आर हैविंग 2 year experience, 2 year experience as on 2nd of December 2024, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसके लिए क्या होंगे, आपका एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। सैलरी बेनिफिट मैंने आपको दिखाया अराउंड 21 to 23 lakhs per annum, ऑलमोस्ट 2 lakh per month का बेनिफिट आपका है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी होंगी। और दूसरा ना, जो वर्किंग प्रोफाइल है वो इतना प्यारा प्रोफाइल है कि लाइक आपको मतलब उस काम में हमेशा मन लगा रहेगा। यू विल हैव इंटरेक्शन विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, MSMEs कैटेगरीज के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर आपका जो आने वाले समय में देने वाला है, ठीक है। तो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल। अब इसके बाद आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप अपनी क्वेरीज
कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक सर जिन्होंने मेरे से पूछा था कि सर एमएसएमई का जो स्टडी करना है नॉट, ठीक है, IANIFS देयर इज अ पेपर इन JIB, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, बहुत सारा कवरेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर और कोई भी टॉपिक आपके हैं जिनमें आपको चैलेंजेस हो रहा है, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स, ठीक है, कमिंग वीक आपका, जहाँ पे मैं आपके लिए वीकली 1 और 2 क्लास आपका प्लान करूंगा फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग लेके चलेंगे, एंड बिफोर योर एग्जामिनेशन आई विल मेक श्योर कि यू विल परफॉर्म गुड इन दोज पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जस्ट फील फ्री टू आस्क, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. So this is it from my side. If you like this session, please do share with your friend also. And if you are new to our channel, please do subscribe our channel. So this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye. Take care all, and all the very best for your preparation, guys. Thank you.